Good Good morning. morning. Good morning, Good Auntie Ji. morning. Morning. Very, very good morning. Pranam. Good Good morning. morning. Good Very morning. good Good morning. morning. Happiest Good day. morning, Morning, ma'am. everyone. Good Very morning. good morning. Such nice, lovely Morning. voices and Good great morning, sir. noise. It is so beautiful, so much energy at 6 o'clock. So, yeah. So, how was everybody's Karwa Chauth yesterday? The chand came out quite early. Amazing. Yeah, because for the last few Yeah. years, it's been, like cloudy in Delhi at least. So it's been very cloudy. Last time it was very, very cloudy. So we had to ask my friends living outside to send me the picture. And then, like all that process of Shivji ki murti plus the photo, this is how we had done the puja. So last two times it's been very, very cloudy. So this time after long saw the moon so crystal clear and bright orange because Krishna Paksh ka moon hai na, ye bahut orange hota hai. Yes, so we are on to our day 2, which is the magic rock. And Abha ji, aap padh rahe ho na? Yes, ma'am. Good morning. Good morning and congratulations that you became a grandmom. Thank you so much, ma'am. Thank you for I your hope you're blessings. enjoying the baby in Australia. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Today, baby is 7 day old. Uh-huh. And yesterday we celebrated Chatti. Oh, अच्छा हाँ पहली बार जब धूप दिखाते हैं टाइप्स ना we take the नहीं baby वो out. बस वो जैसे पूजा होती है काजल लगाते हैं हाँ टीका है ना how उस तरह से nice, very कल किया nice. था हमने. Congrats, so happy for you. देखो और आप कितने परेशान हो रहे थे, everything went so smooth. Yes, ma'am. Yes, है ma'am. ना? Yeah, this is the jadoo of gratitude. Really, really Yeah, amazing. yeah. This is actually, the whole story turned around the way you wanted it to be. Exactly, ma'am. Yeah. So this is the magic rock. So we can see that raat hai, matlab the room is dark, which signifies that it is night time. That's just before going to bed. And you can see a bed on the right side. And you can see a side lamp, the table lamp. And a rock which is kept here. Rock signifies वो normal जो पत्थर होता है वैसा ही और nice round और बिना edges का है. This is how it has to be. एंड उसके साथ पे बहुत सारी किताबें रखी हुई है सो किताबों के बेसिस पे इस रॉक में देयर इज लॉट ऑफ स्पार्कल्स अराउंड इट ग्रैटिट्यूड सो दिस इज व्हाट वी विल बी यूजिंग टू टर्न अराउंड आवर लाइफ दिस इज अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट प्रैक्टिस जिसकी इंपॉर्टेंस तभी पता लगेगी जब मिनिमम आपने ये 21 डेज के लिए कर लिया ये वाला जो प्रैक्टिस है डिलीजेंटली ओके मतलब ये ऐसा हो जाता है कि जब हम बहुत पुराने प्रैक्टिशनर्स हो जाते हैं और बहुत टाइम से हमको पता होता है कि ग्रैटिट्यूड कैसे करना है सो थोड़ी सी एक रिडंडेंसी और कंप्लेसेंसी आ जाती है फिर आपको पता होता है ओके रात में मेरा पत्थर कहाँ है अच्छा हाथ में लिया अच्छा ये हुआ था वो हुआ था अच्छा चलो रख दो और इट इज ऑलमोस्ट लाइक निपटाना इट्स ऑलमोस्ट लाइक ठीक है छुट्टी हो गई कर लिया मैंने ये वाली प्रैक्टिस और सो जाना but it's not about that it's about rewiring the subconscious mind just before going to bed because जो हम of course चलो आगे पढ़ते हैं so yes Abha ji please start reading. Day 2, the magic rock. Reflect upon your present blessings, of which every man has plenty, not on your past misfortunes, of which all men have some, by Charles Dickens, 1812 to 1870. In the beginning of working with these practices, it takes concentrated days in a row to make gratitude a habit. Anything that reminds you to be grateful is helping you turn your life into gold with gratitude. And that's exactly what this magical practice is about. Lee Brower presented the gratitude rock practice in The Secret film and book when he told us the story of the father of a dying child who used a gratitude rock to be grateful for his son's health
and his son made a miraculous recovery. Since then, the Gratitude Rock has been a proven success with many people the world over who have used it for money, healing, and happiness. First, find a rock or a stone. Choose a small size that fits in the palm of your hand and that you can close your fingers around. Choose a rock that is smooth, without sharp edges, not too weighty, and that feels really good in your hand when you hold it. You can find a magic rock from your garden if you have one, or from a riverbed, creek, ocean, or park. If you don't have easy access to any of these places, then ask your neighbors, family, or friends. You may even have a precious rock or stone already that you can use as your magic rock. When you have found your magic rock, put it by your bedside in a place where you will definitely see it when you go to bed. Clear some space if necessary so that you can easily see your magic rock when you go to bed. If you use an alarm clock, put it next to your alarm clock. Tonight, just before you get into bed to go to sleep, pick up your magic rock, hold it in the palm of one hand, and close your fingers around it. Think back carefully through all the good things that happened during the day and find the best thing that happened that you are grateful for. Then say the magic words, "Thank you for the best thing that happened." Return the magic rock to its place by your bed, and that's it. Every night for the next 26 days, follow the same magic rock practice. Before you go to sleep, think back through the day and find the best thing that happened that day. While holding your magic rock in your hand, be as grateful as you can be for that thing and say thank you. Using a rock seems like such a simple thing to do, but through this practice, you will see magical things begin to happen in your life. When you look for the best thing that happened during the day, you will search through many good things that happened, and in the process of searching and then deciding on the best one, you are actually thinking of many things you are grateful for. You will also be ensuring that you go to sleep and wake up in gratitude each day. The Count Your Blessings and Magic Rock practices will ensure that you begin and end your days in a state of gratitude. In fact, they're so powerful that together they would change your life in a few months. But this book is designed to change your life really fast through an abundance of magical practices. Because gratitude is magnetic and attract more things to be grateful for, the concentration of gratitude over 28 days will intensify the magnetic force of your gratitude. When you have a strong magnetic force of gratitude, like magic, you automatically magnetize everything you want and need to you. Magic reminder. Be sure to read tomorrow's magical practice sometime today, as you will need to collect some photographs before you begin. Magic practice number 2, the magic rock.
Number 1, repeat steps 1 to 3 of magic practice. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say, thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, find a magic rock and put it by your bedside. Number 3, before going to sleep tonight, hold your magic rock in your hand and think of the best thing that happened today. Number 4, say the magic words, thank you for the best thing that happened today. Number 5, repeat the magic rock practice every night for the next 26 days. Number 6, read tomorrow's magical practice today. Yeah, thank you so much, Abhaji. Thank you, so ma'am. much for reading so Thank you. beautifully. Thank you. And enjoy your time in Australia. Thank you, ma'am. Thank you so much. Ma'am, I want to share one thing here. While the delivery was going on, I and my husband, we were in gratitude, we were writing, and actually I wrote down how the delivery is going on. And it happened in the same way, exactly the same way. Yeah. This is the magic of gratitude. यही तो हम बताते बताते थक गए हैं लोगों हाँ को जी। कि दिमाग में वो डालो जो देखना है, वो मत सोचो जो नहीं है. यू नो, अब्राहम हिक्स का एक सेंटेंस जो एक बुक में मैंने पढ़ा था, which is focus is creation. You know, focus is creation. ये उन्होंने बोला था, वो लाइन मेरे दिमाग में टैटू हो गई है. So focus is creation. So when you're focusing on anything, you have already created it. So जैसे Yes, आप जो ma'am. बोल रही हैं कि आपने फोकस किया कि किस तरह से डिलीवरी होनी चाहिए आपके ग्रैंडचाइल्ड की, किस तरह से, है ना? So that is what is creating. वो आपके लिए वो फ्यूचर क्रिएट कर रहा है. So हमारा फोकस कहाँ पे जाता है, इसका हमको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमारा फोकस इधर उधर ना भटके. मन जैसे ही इधर उधर जा रहा है वैसे ही अपने आप को वापस से कैटापुल्ट करके पकड़ के लाओ और फिर थैंक यू या उस चीज को जस्ट कैंसिल दैट आउट. अगर नेगेटिव चीज थी जो आप नहीं देखना चाहते हो, कैंसिल इट आउट फ्रॉम योर लाइफ एंड देन फोकस ऑन समथिंग विच इज. सो ये वाली प्रैक्टिस है, मैजिक रॉक प्रैक्टिस, ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस है. होता क्या है कि सबकॉन्शियस माइंड में इतना सारा मतलब ऐसी चीजें भरी पड़ी हैं दैट वर नॉट प्लेजेंट, दैट वी वुड नेवर वांट टू सी, है ना? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड इज अ स्टोर हाउस, इट्स अ मेमोरी चिप. सो उसने बहुत ऐसी चीजें स्टोर कर रखी है जिसमें इमोशंस बहुत पावरफुल थे. सो इमोशंस पावरफुल नेगेटिव चीजों के होते हैं, है ना? खुशियों के आती हैं, शॉर्ट लिव्ड होती हैं. खुशियां हमेशा आती हैं फिर चली जाती हैं, फिर आप अपने नॉर्मल काम में लग जाते हो, फिर नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा. दैट्स ह्यूमन नेचर. ठीक है, इस तरह सोच सोच के हमने जितनी भी टेराबाइट से हमारे ब्रेन में, उन सब में ये इंफॉर्मेशन भरी हुई है नेगेटिव इमोशंस की. सो अगेन, जैसे कल मैंने बताया था कि काउंट माई ब्लेसिंग्स में सुबह अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं. सुबह फिर भी हमारा अल्फा स्टेट ऑफ माइंड इतना पावरफुल नहीं होता जितना रात को होता है. Just before you go to bed, you are for quite some time in the alpha. जब आपको नींद आनी सी शुरू हो रही है, बॉडी टायर्ड हो रही है, उसके बाद से you are in the alpha state of mind till the time we don't drift into sleep. Okay, so that point of time, it is a very powerful time to rewire everything जो हमने पुराना डेटा, पुरानी मेमोरी चिप में जो आया हुआ है, उसको रीवायर करने का सबसे अच्छा तरीका. इनफैक्ट ये जो मेरा नया ग्रैटिट्यूड जर्नल, आज से मैंने ये नया शुरू किया है, तो मेरे सारे पिछले एक हफ्ते में 2 खत्म हो गए हैं. मतलब इतना सारा मैंने ब्लेसिंग्स लिखी हैं, तो ये मैंने नया बनाया. और ये जब मैंने खोला, मेरे पास कोई जर्नल ही नहीं था. सुबह सुबह मैं ढूंढ रही थी कि मेरे पास कहाँ है, अब मैं कहाँ लिखूंगी, क्योंकि सारे खत्म हो गए. सो कल जब मैं रात में वो 369 रात को लिखती हूँ ना, सोने के पहले, मैंने आपको बताया था. सो दैट 369 व्हेन आई वाज राइटिंग, तो मैंने लिटरली उसका जो लास्ट पेज का भी वो होता है ना, जहाँ पे वो गत्ता होता है, उस पे करके 369 कंप्लीट किए थे. सो वो खत्म हो गया था. और ये मैंने जब खोला तो ये इतनी अच्छी अवेकनिंग थी मेरे लिए, बिकॉज
मैंने जब NLP का कोर्स किया था ना, तो मैंने ये पुराना कोई था, तो उसके फर्स्ट 10 पेजेस में मैंने उसके नोट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, NLP प्रोग्राम जब किया था, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, सो उसके नोट्स बना के, मतलब उसमें इतनी सारी चीजें दोबारा से रिकैप हुई हैं, जिसमें फ्रेश न्यूरल वायरिंग के बारे में मैंने लिखा हुआ है, so it's called neuron conditioning as guided, मतलब impressions जो हम देते हैं, so guided impressions हो गए हमारे, जो हम repetition के साथ affirmation करते हैं। so इस तरह से इतनी सारी चीजें पता लगी है। न्यूरॉन कंडीशनिंग लिखा हुआ था, सो न्यूरल कंडीशनिंग मतलब अलग अलग पैराग्राफ्स में। सो व्हेनेवर आई टेक एनी क्लासेस फ्रॉम एनीवन, आई मेक नोट्स, मैं लिख लेती हूँ, जैसे सौम्या करती हैं, सारा वो लिखना। सो मेरी ये बहुत पुरानी आदत है दैट कहीं पे भी कोई कुछ बोलता है तो मैं लिख लेती हूँ, नहीं तो, और मैंने अलग अलग डायरीज बनाई हुई है लिखने की, एंड देन जब आई थ्रो दैट ऑफ, सपोज डायरी पुरानी हो गई तो मैं उसको कहीं और फोटो लेके कॉपी कर लेती हूँ, लाइक इन माई देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट स्टे परमानेंट ऑन माई साइड बेड। सो इसमें अगेन यही सारी चीजें जो हम आज के चैप्टर में पढ़ेंगे। न्यूरल कंडीशनिंग, न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन के सेल्स को बोलते हैं, जो मेमोरी चिप है, जिसमें हमारा डेटा फीड है, पुराना, पिछले जन्म का, उसके पहले के जन्म का, कुछ रिलेशनशिप चैलेंज तब आया हो जिसके कारण हम आज भी सफर कर रहे हैं, बिकॉज जो भी सबकॉन्शियस माइंड में, वो हमारा एक्चुअल फिजिकल रियलिटी बनेगा, करंट रियलिटी बनेगा, है ना। सो न्यूरॉन कंडीशनिंग इतने सॉलिडिफाई हो गए हमारे पुराने एक्सपीरियंसेस कि उनको हटाने के लिए, जैसे रॉन्डा बर्न ने इसमें वो वर्ड लिखा हुआ है ना, कॉन्सेंट्रेटेड डेज ऑफ ग्रैटिट्यूड टू रीवायर द ब्रेन ऑफ द और सबकॉन्शियस माइंड। सो हमको कॉन्सेंट्रेटेड डेज चाहिए होंगे ग्रैटिट्यूड में सोख किए हुए, ईच एंड एवरी डे। So we have to saturate them in gratitude so that you can see that beautiful outcome in your life. और saturate कर रहे हैं जब हम gratitude से, अपने आप हमारे पुराने वाले जितने भी unpleasant thoughts and जो भी थे, like data, वो अपने आप delete हो जाता है। और सबसे अच्छा टाइम जो करने का होता है, रात के टाइम होता है। So magic rock practice हमारा neural conditioning and rewiring में हमारी help करेगी। ठीक है, ये दोनों टर्म्स मैंने NLP से लिए हुए हैं। NLP प्रैक्टिस का मतलब यही होता है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरल बाय थिंकिंग द थॉट, न्यूरल मींस न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स मतलब ब्रेन के जो सेल हैं, जो सबकॉन्शियस माइंड है हमारा, ओके, लेट मी कॉल इट सबकॉन्शियस माइंड, जिसमें पुराने थॉट पैटर्न्स फेड हैं, लैक मेंटालिटी, नॉट गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, सस्ती चीजों में निपटाना, बिकॉज शायद बचपन से ऐसा देखा था कि नहीं नहीं वो महंगा है, वो सस्ता है, तो हमारे दिमाग में इतना स्ट्रांगली वो इम्प्लांटेड है कि हमेशा सस्ती चीजों से हमें खुशी मिलती है, फ्री का सामान को ज्यादा इंजॉय करना, मतलब ये सब पुरानी कंडीशनिंग्स है हमारी, ठीक है, जो लैक मेंटालिटी से आती है। इसके कारण आज की तारीख में हमारे पास बरकत के साथ पैसे नहीं आ पा रहे, क्योंकि हम अभी भी हुक्ड हैं अपनी पुरानी कंडीशनिंग के कारण, ठीक है। सो उनको चेंज करना और बार बार ये बोलना, आई एम अ मनी मैग्नेट एंड इट्स रेनिंग मनी ऑन मी, आई कैन अफोर्ड एनीथिंग एंड एवरीथिंग, माई इनकम इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, आई एम प्रॉस्परिंग बाय डे एंड नाइट, आई एम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, आई एम फाइनेंशियली स्टेबल, okay, I am a giver, I can easily give money to someone who needs it. So ये नए थॉट पैटर्न्स है, ठीक है, जो ऑपोजिट है जो अभी तक हम सीख रहे थे, मतलब जो शायद हमने सुने हैं या जो हमारे सबकॉन्शियस में प्लांटेड है, ठीक है। तो ये जो नए थॉट पैटर्न्स है, ये बार बार रिपीटिशन से हमारे न्यूरल, जिनमें पुरानी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो अपने आप डिलीट होगी और ये नई चीजें प्लान करेंगे। लेकिन इसके लिए रेपिटेशन 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 लगातार करना पड़ता है, और रात का टाइम इसके लिए बहुत इफेक्टिव होता है, बिकॉज उस वक्त हमारा सबकॉन्शियस माइंड खुला रहता है। पूरे दिन भर में सबकॉन्शियस माइंड सो रहा होता है और कॉन्शियस माइंड जाग रहा होता है। कॉन्शियस माइंड बहुत एनालिटिकल ब्रेन होता है, जो अपने 5 सेंसेस से जो हम परसीव करते हैं, बस उसी को वो कैप्चर करता है ना। सो लेकिन सबकॉन्शियस माइंड इज गोइंग टू कैप्चर लाइक ड्यूरिंग द अल्फा स्टेट ओनली, और वो अल्फा स्टेट ब्रेन वेव होता है जो रात के टाइम होती है, और काफी टाइम के लिए होती है, 15-20 मिनट, कभी कभी आधा घंटा। सपोज आपको 10 o'clock बहुत नींद आनी शुरू हो गई, ठीक है, सो फ्रॉम 10 o'clock योर कॉन्शियस माइंड शट डाउन मोड पे जाएगा, और कॉन्शियस माइंड कभी भी, मतलब वो बस यही रीजन, लॉजिक, ये उसने ऐसे कहा, क्लटर्ड होता है।
और सबकॉन्शियस माइंड चिल्ड आउट ब्रेन होता है, वो कहता है ओके जो आप दे रहे हो झूठ भी बोल रहे हो, मतलब सबकॉन्शियस माइंड में ये प्रोग्रामिंग ऐसी होती है कि उसको पता नहीं होता कि क्या सच है क्या झूठ है। अगर आप बोल रहे हो इट्स रेनिंग मनी ऑन मी, आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम आई एम enjoying my perfect body weight, I have an excellent digestive system, I'm feeling and looking younger day by day, my skin is so beautiful, so nice, glowing, clean, clear, glowing, and whatever it is, that my hair is super healthy and it is growing, it's so soft and so shiny, I'm just loving it, it makes me look so good, my tummy is getting flatter and flatter, I'm just loving my very toned tummy, my toned abdomen. So if you keep repeating all these things to yourself, आपका subconscious mind इसको विश्वास करने लग जाता है, क्योंकि subconscious mind के पास true false नहीं होता. Okay, it is not logical brain, subconscious mind. और वो 95% होता है हमारी बॉडी में, है ना. 95% इज दैट हायर इंटेलिजेंस जिसको हमें यूज करना ही नहीं आया अभी तक. सो इसीलिए अब हम कॉन्सेंट्रेटेड डेज और अपनी न्यूरल रीप्रोग्रामिंग करेंगे. रीप्रोग्रामिंग का मतलब है जो पुराने प्रोग्राम्स फेड हैं वो अपने आप डिलीट हो जाएंगे और नए प्रोग्राम्स उसमें फीड होंगे. एंड दिस इज हाउ वी गोना गो फॉरवर्ड इन लाइफ. या So, रात के टाइम में magic rock practice signifies that we have to be grateful for everything that happened during the day, from smallest thing to the big things, from that little sunshine that you saw when you went out for a walk, till the grass that you saw on your roadside in a park. अगर आपने फ्लेक्स करके आर्म्स को भी राउंड रोटेशन करके एक्सरसाइज की है तो अपने जॉइंट्स को, अपने मसल्स को, अपने लिगामेंट्स को, अपनी हड्डियों को, सबको थैंक यू बोलना है हमको. मतलब रात में एक एक चीज याद करके, मतलब दोबारा से गो बैक इन द मॉर्निंग, फ्लैशबैक. ज्यादा फ्लैशबैक नहीं है, सिर्फ सुबह जाना है जितने भी बजे उठे थे, 4:30-5 बजे. उसके बाद आपने क्या किया, ये किया, ये किया, ये किया. ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू दैट मेरे पास राइटिंग स्किल है, थैंक यू कि मैं स्कूल गई कि मुझे लिखना आता है, थैंक यू मेरी उंगलियों के लिए जिनसे मैं पेन पकड़ती हूँ. ठीक है, सो थैंक यू. और क्या क्या किया आपने उसके बाद, मे बी यू वॉकड अराउंड, यू हैड टी, सो थैंक यू टू माई ब्यूटिफुल किचन एंड ऑल द यूटेंसिल्स, मैंने इतनी टेस्टी चाय बनाई, थैंक यू टू द टी लीव्स एंड थैंक यू टू द शुगर एंड मिल्क जिससे मैंने चाय पिया, थैंक यू टू माई कप मग जिसमें आपने चाय पिया. उसके बाद क्या किया, उसके बाद और ब्लेसिंग्स लिखी. सो थैंक यू टू माई ग्रेटिट्यूड जर्नल एंड थैंक यू टू द बुक्स दैट हैव टॉट अस ऑल दिस. किताबों ने हमको सिखाया है ना. हम तो पहले ऐसे नहीं थे कि सुबह उठ के ग्रैटिट्यूड लिख रहे हैं, हमारे पास बहुत होता था करने के लिए पहले सुबह. फिर उसके बाद हमने सेशन में इतनी अच्छी टीचिंग्स पढ़ी, उसके लिए ढेर सारा थैंक यू. एंड देन यूनिवर्स से बोलो कि थैंक यू मुझे वो स्पॉन्ज बनाने के लिए कि मैं सारी अच्छी बातों को इतनी आराम से एब्जॉर्ब कर लेती हूँ जो भी है. आफ्टर दैट जो क्या, तो इसलिए थिंक थ्रू द डे, कम से कम 5 से 7 मिनट बिताओ. जो 5 से 7 मिनट में बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस क्रिएट होती है बॉडी के अंदर, जिनसे न्यूरल प्रोग्रामिंग बहुत जल्दी होगी. ठीक है, सो 5 से 7 मिनट, मिनिमम 5 मिनट्स, मैक्सिमम 7 मिनट्स. स्पेंड दैट इन जस्ट काउंटिंग द ब्लेसिंग्स ऑफ द डे, सुबह से लेके रात तक. ठीक है, और वो काउंट करते 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 एंड देन वी विल जस्ट फाइंड कि इसमें से सबसे बेस्ट क्या था, सबसे बेस्ट क्या था, वो चीज सोचो. ठीक है, डजेंट मैटर, यू कैन आस्क द यूनिवर्स कि क्या मैं कौन सा बेस्ट चूज करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि 3 चीजें थी, मुझे तो तीनों ही बहुत अच्छी लगी, हाँ लेकिन 3 में से इसमें से बेस्ट था. और ये करके आप सो जाओ. अब उसके बाद जब आप सो गए हो, अब सबकॉन्शियस माइंड जो भी आपने सीड्स प्लांट किए हैं, जो भी बीज बोए हैं अपने सबकॉन्शियस में, क्योंकि सबकॉन्शियस तो खुला हुआ था उस टाइम, और जो भी बीज बोए हैं अब वो जर्मिनेट होने शुरू होंगे. ठीक है, और वो बहुत बड़ा पेड़ बनेगा और एक एप्पल के पेड़ की तरह उसमें 500 एप्पल्स निकलेंगे. एंड देन आप जिंदगी के मजे लेना. ठीक है, तो ये बहुत पावरफुल प्रोग्रामिंग होती है एंड दिस इज हाउ यू डू इट. सो आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, मुझे तो याद ही नहीं आता, कभी कभी तो वो बेस्ट चीज भी नहीं ढूंढ पाती हूँ, मतलब नींद आ जाती है वो थैंक यू करते करते ही. सो नींद ही आ जाती है बिल्कुल. सो कितना अच्छा तरीका है कि फिर आप सुबह भी उठते हो और फिर सुबह उठते से ही फिर से काउंटिंग माय ब्लेसिंग्स करना शुरू कर देते हैं. रात को मैजिक रॉक, और वो पत्थर को मुट्ठी में लेके बंद करके करना होता है. पत्थर सिग्निफाई करता है 5 एलिमेंट्स.
ओके, ऑफ द सारे अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस, क्योंकि पत्थर में सब कुछ होते हैं। ठीक है, आप कभी भी पत्थर को लेना, अगर ठंडा भी उठाओगे ना, थोड़ी देर मुट्ठी में रखोगे, वो एकदम गर्म हो जाता है, आपकी बॉडी हीट एब्जॉर्ब करके, इतना ज्यादा मतलब वो होता है, यू नो, लाइक थर्मोजेनिक, कि वो हीट बिल्कुल हॉट हो सकता है। तो उसमें सारे एलिमेंट्स होते हैं, उसमें स्पेसेस होते हैं, उसमें एयर एलिमेंट होता है, उसके बीच बहुत स्पेसेस होते हैं। ठीक है, एयर एलिमेंट होता है उसमें, अर्थ एलिमेंट का तो होता ही है वो। सो दिस इज हाउ ब्यूटिफुल इट इज, है ना। तो आप मतलब पूरा जो भगवान का स्वरूप होता है पत्थर, जो नॉट रैंडम पत्थर था, उसको इतना मीनिंग देते हैं हम। उसको अपने मुट्ठी में पकड़ना होता है। हमको पता है हमारे सारे न्यूरल एंडिंग्स हाथ में होते हैं। तो न्यूरल एंडिंग्स जो होते हैं, वहां पे सबसे ज्यादा फायरिंग होती है। रॉबिन शर्मा का एक वीडियो देख रही थी, उन्होंने इंपॉर्टेंस बताई थी कि हमारे जो पाम में, हथेलियों में जो न्यूरॉन के एंडिंग्स होते हैं, तो ऐसे करते हैं ना कई लोग, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर। तो एक्यूप्रेशर हमेशा न्यूरल एंडिंग्स को, इनमें से जो नर्व एंडिंग्स होती है, जैसे कोई पेट को जा रही है, कोई कहीं जा रही है, कोई स्पॉन्डिलाइटिस के लिए दबाते हैं, कोई बैक पेन के लिए दबाते हैं, कोई नींद नहीं आ रही उसके लिए दबाते हैं, कोई डाइजेशन के लिए दबाते हैं, इसमें कोई किडनी के लिए दबाते हैं। इसका मतलब है पूरी बॉडी के सारे ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स हमारी हथेलियों में होते हैं। ठीक है, सो और इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फायरिंग होती है। सो इसलिए हम अपनी मुट्ठी में पकड़ते हैं उस पत्थर को। ठीक है, और फिर बंद कर लेते हैं मुट्ठी, ताकि सारी जो एनर्जी ऑफ ग्रैटिट्यूड जो अभी ब्रेन में चल रही है, वो फायर होके हमारी हथेलियों तक आ जाए, और उससे वो एब्जॉर्ब हो जाती है पत्थर को। इसीलिए हम रैंडम पत्थर, जो मैंने आपको कल बताया था, तो मैंने कहा था कि एक नॉर्मल सा पत्थर लेना, मतलब बिल्कुल जो सड़क के किनारे रखा हुआ होता है, या इस तरह का ना, जो नेचर का पत्थर होता है। ऐसे नहीं कि वो फैक्ट्री में क्राफ्टेड है और बड़ा सुंदर बना दिया है, वो सब नहीं। ठीक है, बिल्कुल ही 5 एलिमेंट से बना हुआ जो पत्थर होता है, हमको वो लेना होता है। और उसको जब हम मुट्ठी में डालेंगे, मुट्ठी में पकड़ के रखेंगे, तो अपने आप हमारे दिमाग में तो बहुत ग्रैटिट्यूड चल रहा है, और फायरिंग अलग तरीके से हो रही है। तो वो फायरिंग के कारण वो जो पत्थर है, क्योंकि नर्व एंडिंग्स हथेलियों में होती है, वो उसको, उस फायरिंग को, उस ग्रैटिट्यूड को, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड देन दैट पत्थर बिकम्स अ पावर, है ना। हमने देखा है ना, आप भगवान की कोई मूर्ति करते हैं, तो उसमें पूजा कर करके वहां पे अच्छे अच्छे भजन चला चला के, यू नो, उसमें मतलब जो भी वो पत्थर की, वो एक स्कल्प्टर ने बनाई हुई मूर्ति थी, जो एक नॉर्मल पत्थर से बनाई हुई थी, लेकिन उसमें पावर आ जाती है ना। फिर हम उस मंदिर में जाते हैं, और हम जो भी विश मांगे वो हमारी पूरी हो जाती है। फिर हमें वो हो जाता है बिलीफ, ट्रस्ट, फेथ, कि हम जो मानता मांगते हैं हमारी वो पूरी हो जाती है। बहुत पावरफुल टेम्पल है। सो वी हर्ड फ्रॉम सो मेनी पीपल वेयर दे सेड दैट बहुत पावरफुल है, because our faith, our devotion, the devotional songs, the praises of the God, the सुबह दोपहर शाम की जो 5 टाइम की आरती होती है, उन सब एक्शंस की वजह से एक अलग पावर आ जाती है। बिकॉज वाइब्रेशन और एनर्जी उस मंदिर की, या जो भी जगह है, कभी कभी तो पेड़ के नीचे ही मूर्ति रखी होती है ना, लेकिन लोगों की इतनी ऑफरिंग्स होती हैं कि उसकी वजह से पावर आ जाती है। सो इसीलिए उस तरह से हमारे पत्थर में एक पावर आ जाएगी, एंड दैट पत्थर को आप कभी भी फ्यूचर में आगे पकड़ के जो विश मांगोगे ना, वो पूरी हो जाती है, क्योंकि उसमें इतनी ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। सो दिस इज अबाउट द मैजिक रॉक प्रैक्टिस। साइंटिफिकली भी मैंने आपको समझा दिया है, स्पिरिचुअली भी समझा दिया है ना। और इसकी वजह से जो हमारी बॉडी में, लाइफ में चेंजेस आने लग जाएंगे, तो वो आप कमाल के देखोगे। सो बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड में अब हमारे पुराने पैटर्न्स ऑलमोस्ट हट गए। पता नहीं ऑलमोस्ट हटे हैं कि नहीं है, मतलब प्रोसेस है, क्योंकि लगातार हम कर्मा क्रिएट भी तो करते जा रहे हैं ना, नेगेटिव। ठीक है, हटा रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं अपना पुराना वाला, नई चीजें अच्छी अच्छी डाल रहे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया, ग्रैटिट्यूड में रहने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी तो नेगेटिव कर्मा क्रिएट कर रहे हैं ना। सो उनके बारे में ध्यान रखना, और उनको ज्यादा एयर टाइम नहीं देना। I mean, don't give a lot of airtime to anything which is not something that you would like to see, not something which is so pleasant, है ना? So don't. Giving airtime is like, imagine, focus is creating. Okay, so we are not focusing on any problem. We are not focusing on anything which is not pleasant. We are not focusing on any past experiences which is, I mean, don't give air time. देखो, human beings हैं, दिमाग जाएगा ही, पुरानी चीजें भूलने में बहुत मुश्किल होती है ना, और क्योंकि वो इतनी टाइटली वायर्ड होती है ना हमारे सबकॉन्शियस माइंड में,
कि वो बार बार उसकी वजह से हम करंट रियलिटी देखते हैं तो इट इज नॉट वेरी प्लेजेंट, प्रॉब्लम्स में चले जाते हैं। रिलेशनशिप किसी और से गड़बड़ हुई थी लेकिन उसके कारण बाकी की रिलेशनशिप भी अभी खराब हो जाती हैं, ठीक है। बट हम चेंज करेंगे, सब कुछ चेंज हो जाता है, ठीक है। 100% हम चेंज कर पाएंगे, वी डोंट हैव टू, ओके। सो इन अ माइन्यूट फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड हम मिलियंस ऑफ लाइक लाइफ टाइम्स के कर्मा रिप्लेस कर सकते हैं, पता है ये वाली चीज। सो इसलिए जितना एयर टाइम हम उन चीजों को देंगे that feel good to us, that feel pleasant to us, that we want to create in the future. What kind of a future would you like to see? What kind of a money do you want to enjoy? What kind of health do we want to enjoy? What kind of hair do we want on our head? What kind of body do we want? What kind of relationships do we want to have? How you want to increase your circle of friendships? How you want to laugh a lot? How you want to incorporate love, laughter, and joy into your life. Okay, all these things, how you want that new car, feel the feeling of having a beautiful new car, etc., etc., etc. This is how we want to, like spend our rest of the life now. Okay, while at the same time, दिमाग बार बार जाएगा पास की तरफ, लेकिन धीरे धीरे कोई भी कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, फिर से पुराना जाएगा। से टेल योरसेल्फ, सरोंडा बर्न अपने इंटरव्यूज में बोलती है ना कि एकदम से बोलो कैंसिल कैंसिल कैंसिल, आई डोंट वांट दैट, कैंसिल कैंसिल, एंड रिक्रिएट इट, रिक्रिएट व्हाट यू वांट, उसका रिप्लेसमेंट डाल दो, ठीक है। दिस इज हाउ वी वांट टू बी लाइक। So which is so beautiful thing, and it's so scientific as well. It's not कि सिर्फ spiritual realm में और किताबों में लिखा है तो उनको मान लो, इसका बहुत strong scientific foothold है, ठीक है। So चार्ल्स डिकिंस का कितना सुंदर ये कोट है, reflect upon your present blessings of which every man has plenty. इतनी blessing है, सांस ले पा रहे हैं फ्री में, ठीक है। इमेजिन बहुत सारे लोग हैं जो सिलेंडर से सांस लेते हैं, या उनको सांसें नहीं आती है ठीक तरीके से, इतना क्रॉनिक एस्थमा होता है, सांसें नहीं आती हैं उनको ठीक से। सो हमको फ्री में मिलती जा रही हैं और आराम से सांस ले रहे हैं, और इसी में वॉक भी कर लेते हैं, सीढ़ियां भी चढ़ लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, इतना ब्यूटीफुल होती जा रही है, ठीक है। कभी उन सांसों को थैंक यू, उस हवा को थैंक यू जिसकी वजह से हम जिंदा है, और उस सिस्टम को थैंक यू, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो इतनी आराम से हमको सांस लेने दे रहा है ना। सो छोटी छोटी चीजें हमारी जिंदगी में है, सो रिफ्लेक्ट ऑन देम, ऑन योर प्रेजेंट ब्लेसिंग्स ऑफ विच एवरी मैन हैज प्लेंटी, और वो इतनी सारी हैं कि अगर पूरा जन्म भी बीत जाएगा ना तब भी वो पूरी नहीं होंगी, ठीक है। एंड नॉट ऑन योर पास्ट मिसफॉर्च्यून्स, मतलब पास्ट मिसफॉर्च्यून में मत जाओ, जो हुआ सो हुआ, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, व्हाट वी हैव टू डू फ्रॉम टुडे एंड राइट नाउ होल्ड्स मोर वैल्यू इन लाइफ। Okay, so we have past misfortunes, of all of us have some of them, but it's just all right. Okay, मिट्टी पाओ आगे बढ़ो, मिट्टी पाओ मतलब मिट्टी डाल दो उस पे, उसमें मिट्टी डाल दो, बरी कर दो, ठीक है, और आगे बढ़ते जाओ और अपने ब्यूटीफुल फ्यूचर को क्रिएट करो, फोकस ऑफ अटेंशन चेंज करके, बस, ठीक है। फोकस ऑफ अटेंशन अब ये है कि वाओ मेरे पास ये है, वाओ मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, मेरे पास फोन है जिससे मैं लॉग्ड इन हूँ, मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास लैपटॉप का चार्जिंग है, इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, एक मेन वो स्विच बोर्ड है जहाँ पे सारी इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल हो रही है, जो इतना अच्छा चल रहा है, खाना बनाने के लिए गैस है, इलेक्ट्रिसिटी है, माइक्रोवेव है, इतनी सारी चीजें, किचन भरा हुआ रहता है, फ्रिज है खाने को फ्रेश रखने के लिए, फ्रिज को, मतलब इतनी सारी, जितना आप गिनते जाओगे ना उतना ज्यादा आपका फ्यूचर सुंदर होता जाएगा। इट इज जस्ट अबाउट इट, दैट्स इट अबाउट दिस प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस रात के टाइम करनी है, पत्थर हाथ में लेके करनी है, फिर उसमें से बेस्ट चीज निकालनी है, और बेस्ट चीज जो दिन को क्या हुई थी, and just go to sleep with that kind of an attitude. So attitude of gratitude के साथ हम सो जाएंगे, and that is it. So इसमें ये बहुत important है, it takes concentrated days in a row to make gratitude a habit. So let's make it a habit. Okay, imagine किसी की habit ही gratitude है, उसकी तो जिंदगी अच्छी होगी ना। So that is all as simple as that. और रात को जब हम करेंगे तो definitely बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। हमने सीक्रेट मूवी में देखा था ली ब्राउन ने किस तरह से अपने टर्मिनली इल बच्चे की तबीयत ठीक की थी, है ना। मतलब डॉक्टर ने बोल दिया था कि आप अपने बच्चे को घर ले जाओ, हम इसका कुछ नहीं कर पा रहे, छोटा सा बच्चा था, आई थिंक 11 साल का,
कहा कि हम इसको ठीक नहीं कर पाएंगे, मतलब जो भी उसको बीमारी थी, तो वो किस तरह से फादर जो था वो घूमते घूमते एक रिवर बेड पे गया, बिल्कुल मतलब कंधे झुके हुए, सिर झुका हुआ, बिकॉज उसको बिलीव ही नहीं हो रहा था कि उसका बेटा ठीक नहीं हो पाएगा। और फिर उसने एक पत्थर उठाया और उस पत्थर में बस ये कहा कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरे बेटे को 100% हेल्दी करने के लिए। ठीक है, और वो बोलता गया बोलता गया बोलता गया, और उसके बाद वो बेटे को घर लेके तो चले गए थे, लेकिन उसके बाद मिराकुलस रिकवरी बेटे की हुई है। उसके बाद से ग्रैटिट्यूड रॉक हैज बिकम द टॉक ऑफ द टाउन। इट इज ऑल ओवर अमेजोन। अगर आप अमेजोन पे टाइप करोगे ग्रैटिट्यूड स्टोन, ग्रैटिट्यूड रॉक, आपको इतने सारे मिलेंगे। तो वो अमेजोन ने कुरियर करना शुरू कर दिया। So this is how it became so popular. Okay, and today all of us are using it as well. So this is what it is. And it says here that your gratitude is very, very magnetic. When you have a strong magnetic force of gratitude like magic, you automatically magnetize everything you want and need to you. Okay, so हमने पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड में ये भी पढ़ा था कि किस तरह से रात को जो सोचोगे वो आपकी रियलिटी बन जाता है। तो रात को उन्होंने कुछ कोड्स दिए थे ना, वेल्थ एंड सक्सेस इज माइन नाउ, जो शक्ति गवैन ने भी दिए थे हमें बुक में, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन में। wealth and success is mine now, and we were told to imagine the things that we want to see in our life, और कितनी जल्दी वो हो जाता है, मतलब it doesn't take even 3 days। अगर आप powerful manifester हैं, आपके visualization strong है, it doesn't take even 3 days for that kind of a wealth and success to come into your life, but lack mentality हटानी पड़ेगी उसके लिए। ठीक है, yes, so magic reminder कल का ये है that हमको 3 फोटो जो हमसे क्लोज्ड वंस हैं उनकी चूज करके रखनी है, जिनके साथ हम रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं। ठीक है, बट क्लोज वंस होने चाहिए, बिकॉज ये चैप्टर नंबर 3 है, तो इसमें टूटे हुए रिश्ते वालों की मत लेना। कोई ब्रोकन रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इट शुड बी पीपल हु आर पार्ट ऑफ योर लाइफ। इट कुड बी योर फ्रेंड्स, योर बॉस, योर फैमिली, योर नेबर्स, cousins, cousin uncles, aunties, इस तरह के लोग जो आपको मैटर करते हैं, जो आपके फर्स्ट एंड सेकंड सर्कल ऑफ लव में होते हैं, उन्हीं का। ठीक है, सो उनके साथ, मतलब ऐसा नहीं टूटा हुआ रिश्ता नहीं है ये, मतलब जो ऑलरेडी ठीक ठाक है, बट यू वांट टू ऐड मैजिक टू दैट रिलेशनशिप। ऐसे 3 लोगों की फोटो आपको कल चूज करके रखनी है। डिजिटली आप अपनी गैलरी में रख सकते हो, हार्ड कॉपी तो आजकल होती नहीं है, गैलरी में रख सकते हो, डेस्कटॉप पे रख सकते हो, वेरेवर यू वांट टू। ठीक है, तो उनके साथ वी विल क्रिएट मैजिक। और बिल्कुल ब्रोकन नहीं, मतलब अगर नई नॉट सो गुड चल रही है, उनकी आप ले सकते हो अगर वो क्लोज फैमिली मेंबर्स हैं, जैसे ब्रदर सिस्टर्स, हस्बैंड वाइफ्स, मदर एंड चिल्ड्रन, कुछ बहुत आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं कुछ टाइम से, लेकिन है तो क्लोज रिलेशनशिप ना, सो उन लोगों की लेके आप रखना। बिकॉज ऑफ वॉट एवर प्रिटेक्स्ट आपकी लड़ाई हो रही है, या वॉट एवर रीजन की वजह से, जिस भी रीजन की वजह से आपका ठीक ठाक, मतलब कुछ ऑन एंड ऑफ खट्टा मीठा सा है, उसको बहुत मीठा बनाना है। अगर आपको उनकी 3 फोटो हमको चूज करके रखनी है, आज से ही रखनी है, क्योंकि कल की ये प्रैक्टिस है। एंड प्रैक्टिस मैजिक रॉक प्रैक्टिस में सबसे पहले काउंटिंग माय ब्लेसिंग्स, आज की डेट और डे डाल के 10 ब्लेसिंग सुबह सुबह लिखना। ब्रह्म मुहूर्त में लिखोगे तो लाइफ में मिरेकल्स होंगे। ब्रह्म मुहूर्त आधे घंटे पहले खत्म हो जाता है सनराइज के। ठीक है, सनराइज के आधे घंटे पहले ब्रह्म मुहूर्त खत्म हो जाता है। उसके अगर ब्रह्म मुहूर्त में आप लिखोगे 10 ब्लेसिंग्स, लेकिन उसके लिए टाइम से सोना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आधी नींद में उठ के लिख रहे हो और दिमाग नहीं चल रहा, नींद आती जा रही है, नहीं। यू शुड फील नाइस एंड फ्रेश। ओके, सो स्लीप ऑन टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वन चेंज वी नीड टू मेक। सो काउंटिंग माई ब्लेसिंग्स, 10 ब्लेसिंग लिख के उनको रीड करना, और फिर जोर से 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आवाज में बोलना, जोर से नहीं बोलना, आई मीन आवाज निकाल के बोलना, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थोड़ा विस्परिंग टोन में भी बोल सकते हो, क्योंकि बहुत अर्ली मॉर्निंग होती है। ठीक है, एंड फील एज ग्रेटफुल फॉर दैट ब्लेसिंग एंड फील दैट ग्रेटिट्यूड फॉर दैट थिंग। ठीक है, फिर फाइंड अ मैजिक रॉक, और मैजिक रॉक को अपने बेड साइड पे ही रखना, ताकि आपको उठना ना पड़े। ठीक है, उठना ना पड़े। उठना पड़ेगा तो फिर अल्फा स्टेट ऑफ माइंड नहीं होता, फिर होता है कहाँ चला गया मेरा मैजिक रॉक, अच्छा मैंने कल तो यही रखा था, देखो मेरी डोमेस्टिक हेल्पर हमेशा ऐसे कर देती है, पता नहीं उसको क्या।
ये सब नहीं होना चाहिए। एक डेजिग्नेटेड प्लेस होनी चाहिए जहाँ पे आप मैजिक रॉक रखो अपना। वहां से बेड साइड टेबल पे हो सकता है, बॉक्स में रखना है, अंडर द मैट्रेस रखना है, अंडर द पिलो रखना है। और अगर आपकी हेल्पर्स हैं जो आपका बेड बनाते हैं, व्हेन दे मेक द बेड, उनको पहले से ही बता देना कि ये यहाँ पे रखा हुआ है तो इसको इसको नहीं हिलाना है, उनको फिर पता होगा। ठीक है, बिकॉज अगर आपने लाइट जला ली, वापस से उठ गए, फिर आप बीटा प्लस में चले जाओगे, नॉट जस्ट बीटा। ओके, सो बट अल्फा स्टेट में ये करनी होती है प्रैक्टिस। इसीलिए मैजिक रॉक को एक ही जगह पे बेड साइड में रखो, जो लाइट बढ़ने के बाद रीचेबिलिटी होनी चाहिए उसकी। ठीक है, और सोने के पहले होल्ड दैट मैजिक रॉक इन योर हैंड एंड थिंक ऑफ ऑल द थिंग्स दैट हैपेंड ड्यूरिंग द डे, एंड देन द बेस्ट थिंग उसमें से निकालो, और फिर उसको थैंक यू बोल के जो बेस्ट थिंग हुई थी उसको सो जाओ। और अभी जिंदगी भर की प्रैक्टिस है, तो 2 practices lifelong. The first one is counting my blessings every day, 10 blessings, and रात को मैजिक रॉक प्रैक्टिस। ये हमारी कंटिन्यू रहेगी। अब इसके बीच बीच में कल से असाइनमेंट्स हमको मिलेंगे, जिसकी वजह से हमारी पूरी वायरिंग और हमारी किस्मत बदलने लग जाएगी। डेस्टिनी इज नथिंग बट ओल्ड थॉट्स दैट आर वायर्ड इन द सबकॉन्शियस माइंड, उसी को डेस्टिनी बोलते हैं। ठीक है, सो अब हम अपनी डेस्टिनी चेंज करेंगे और डेस्टिनी क्रिएट करेंगे। फोकस इज क्रिएशन, सो हम डेस्टिनी क्रिएट करेंगे। यस, सो नाउ वी गो टू द अदर बुक। ब्यूटिफुल बुक, हाउ टू अवेकन द हीरो विद इन अस, है ना, उसके बारे में किताब है, बिकॉज इस किताब का नाम है द हीरो बाय रॉन्डा बर्न। एंड ईच ऑफ अस इज अ हीरो। इट जस्ट दैट अभी तक हमारा 10% हीरो जगा हुआ था, कुछ लोगों का हमारा 1% था, कुछ लोगों का हमारा 30% था। सो हम अपना 100% हीरो। वैसे ये वाला द इल्यूजन ऑफ सिक्योरिटी हम कल पढ़ चुके हैं, लेकिन हम ये वाला पैराग्राफ रीरीड करेंगे आज, क्योंकि इसकी बहुत सिग्निफिकेंस है और इसी से रिलेटेड बाकी सबके फिर एनेक्डोट्स हैं जो उन लोगों ने बताए हैं अपनी जिंदगी के बारे में। सो यस रीना, प्लीज स्टार्ट रीडिंग। Yes, ma'am. Good morning. Good morning, everyone. The illusion of security. Don't let money and security dictate your choices in life. Life continually changes. Companies change hands, go bankrupt, or relocate overseas. Jobs are lost, or economic collapse brings about massive cutbacks. You can lose your job, your savings, and your house. Marriages can end, health challenges can appear, and circumstances can arise that throw the security you thought you had out the door. I chose financial security over following my dreams. And when I was fired, I was clearly shown that the security I thought I had was all in my mind. Real security means knowing there is no security, because then you will make sure you live every day of your life to the fullest. हाँ, सो इट मीन्स बिल्कुल इनसिक्योर हमको होने की जरूरत नहीं है, किसी पर्सन को लेके, लाइफ को लेके, पैसे कम हो रहे हैं उसको लेके। इस मोमेंट को आप एंजॉय करो। रियली डज नॉट मैटर, बिकॉज एवरी मोमेंट आप अपना फ्यूचर मोमेंट क्रिएट कर रहे हो। इन योर नाउ यू आर क्रिएटिंग योर फ्यूचर। सो इन नाउ अगर आप रिजेक्टेड, लॉस्ट, इनसिक्योर, फियरफुल, वरीड, अगर इस तरह फील कर रहे हो, तो डेफिनेटली यूनिवर्स विल गिव यू मोर ऑफ दैट। नो, so never refrain from that dream that you are holding in your head as to where you want to reach. ठीक है, अगर आपने बैठ के यही सोच लिया ना कि मुझे जिंदगी में कहाँ पहुंचना है और इस वक्त मुझे क्या क्या चाहिए अपनी लाइफ में, आधी चीजें तो आपकी वहीं, कहते हैं ना 60% वहीं पे पूरा हो जाता है। क्योंकि लोगों को यही पता नहीं होता। मैंने इतने सारे लोग जो फ्रेंड सर्कल में या फैमिली में उनसे पूछा है दैट व्हाट इज योर बिगेस्ट गोल राइट नाउ, व्हाट इज इट दैट यू वांट। ठीक है, कई बार मैंने कॉन्वर्जेशन को चेंज करने के लिए बोला है, बिकॉज कुछ कॉन्वर्जेशन यू डोंट लाइक ना। आई डोंट लाइक टू हियर व्हेन पीपल आर वाइनिंग ऑल द टाइम। सो इमीडिएटली जस्ट टू ब्रेक दैट वाइनिंग वाला कॉन्वर्जेशन, मैं उसको चेंज कर देती हूँ कि व्हाट इज इट, व्हाट्स दैट वन गोल, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5, आप 5 महीने के बाद आपको क्या चाहिए, मतलब किस तरह की, क्या कोई भी चीज के मामले में। यू विल नॉट बिलीव, मुझे कोई नहीं बता पाया। मतलब एम्बिगुअस थोड़े तो बताएं, मतलब हेजी से वेरी वेरी अनक्लियर, एम्बिगुअस, या फिर मोस्ट ऑफ द 90% आंसर्स हैव कम, आई रियली डोंट नो, कांट से, आई हैव टू थिंक अबाउट इट, I can't say, I'll have to think about it.
So this is how we are leading our lives. तो किसकी गलती है? यूनिवर्स इज देयर टू गिव टू अस लाइक अ लिटिल मैजिक जिनी, बट वी आर नॉट रेडी टू रिसीव इट, क्योंकि हमको पता ही नहीं हमको चाहिए क्या, हमने बताया ही नहीं है यूनिवर्स को कि हमें चाहिए क्या। तो इसीलिए अपने ड्रीम्स एंड डिजायर्स के बारे में सोचो और उनको पूरा करो। यू नो, लेकिन हम में भी अभी हो सकता है, ऑल्दो हमने अपनी ड्रीम लिस्ट बनाई हुई है, लेकिन प्रिसिशन के साथ ये मालूम करना कि मुझे कितना चाहिए, क्या चाहिए, ये चाहिए, so that is like very important, you know, मतलब it's 60% of your work done अगर आपको ये पता है कि आपको पहुंचना कहाँ है। ठीक है, बहुत सारे गोल्स पे भी नहीं फोकस करना, तो कोई बात नहीं, आप 3 गोल पे फोकस कर लो। ठीक है, 10 लिखे हैं, 10 लिख दिए हैं, लेकिन हो सकता है कि वो 3 आपके लिए उस 10 में से बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में सोचो, उनको बार बार दिमाग में रिक्रिएट करो, एंड देन यू विल सी दैट हैपनिंग। बट नई लोगों को पता, तो फिर ऐसे में इट सेज कि कोई बात नहीं, लाइक अगर आपका जो स्टैंड पॉइंट होता है ना, जब सब खत्म हो गया है, तो मैंने बताया था ना कि एवरी एंडिंग इज अ न्यू बिगनिंग। अगर कोई भी चीज आपकी जिंदगी में ऐसी चल रही थी जो आपको नहीं अच्छी लग रही थी, और फिर अभी ऐसे ब्रेकडाउन मोमेंट्स आपकी जिंदगी में आते हैं ना, हेल्थ में आ सकते हैं, किसी भी और चीज में, बट अगर कोई गड़बड़ चल रही है ना, इसका मतलब है आपकी जिंदगी में एक न्यू बिगनिंग होने वाली है, और जो बहुत ही गोल्डन बिगनिंग है, बिकॉज यूनिवर्स का तरीका वही होता है, कभी कभी खत्म करो और दोबारा से रिक्रिएट करो बिल्कुल स्क्रैच से। So, इसीलिए never be insecure, because universe has the best to offer to us. Okay, more wealth, more abundance, more health, more of everything that you want, amazing relationships, and we will start enjoying the life from scratch. Okay, फिर हमको real enjoyment का मतलब पता लगेगा, अभी तक हमको पता नहीं था कि जिंदगी को enjoy कैसे करते हैं, और ये धीरे धीरे होगा। कई लोगों की वायरिंग बहुत जल्दी चेंज हो जाती है, कई लोगों को अगर बहुत स्टबर्न वायरिंग होती है ना, बिकॉज एक्सपीरियंसेस कई बार जिंदगी में ऐसे होते हैं कि वो वायरिंग बहुत स्टबर्न हो जाती है, तो वो अगर बहुत ही फ्रिजिड, बहुत स्टबर्न वायरिंग है, सो इट्स गोइंग टू टेक अ वाइल। ओके, बट डजंट मैटर, अगर वो 5 जन्मों की वायरिंग है, तो हो सकता है 1 महीना, 2 महीना या 6 महीने लग जाए, लेकिन इंप्रूवमेंट तो होना शुरू हो गया है, और इंप्रूवमेंट बहुत फास्ट स्पीड पे हो रहा है। ठीक है, सो कल पूनम ने हमें मैसेज करके बोला था कि बड़ा अच्छा लगता है कि लोगों की इतनी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है जिंदगी में, मतलब ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं कि कभी कभी 7:30 बज जाते हैं, और मेरा पूरा दिन उसकी वजह से आधा घंटा लेट चलता है, यू नो, बिकॉज इट्स एंडिंग लेट, सो एवरीथिंग आई गेट डिलेड, मेरा वर्कआउट उस तरह से नहीं हो पाता, फिर वो मुझे शाम को आके करना पड़ता है वो सब। बट यू नो, लाइक वो इतना इम्पोर्टेंट, ऑफ कोर्स हम उसको भी वर्क करेंगे, आई थिंक बाय 7:10 वी शुड एंड द सेशन, बिकॉज ऑल ऑफ अस हैव टू गो, एंड while we can take weekends पे हम concentrate कर लेंगे days, but we can only have our sharings and people can share, but it is so beautiful, है ना। So that is what she was saying कि कितना अच्छा लगता है, लोगों के इतने बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं जिंदगी में, मतलब ऐसी चीजें, उससे ही लगता है कि आपकी वायरिंग चेंज हो चुकी है बिल्कुल भी पूरी तरह से, और वो होती ही जा रही है, बिकॉज मोर एक्सपीरियंसेस यू विल ऑनर, वी आर ऑनरिंग द एक्सपीरियंस ना, जब हम शेयर करते हैं कि मेरी जिंदगी में ये हुआ है, इसका मतलब मैं ऑनर कर रही हूँ अपनी लाइफ को और यूनिवर्स के उस गिफ्ट को। शेयरिंग करने का मतलब यही होता है ना कि आपको एक गिफ्ट मिला है और आप उसको सबके साथ शेयर कर रहे हो कि देखो मेरे साथ ऐसा हुआ, आपके साथ भी ऐसे हो सकता है, मैंने ये प्रैक्टिस करी। तो मुझे अच्छा लग रहा था, कल श्याम जी ने शेयर किया तो सब पूछ रहे थे, फिर प्रियंका ने भी शेयर किया तो पूछ रहे थे, और आपने क्या किया, आपने कैसे सोचा, आपने क्या प्रैक्टिस की। नथिंग, प्रैक्टिसेस आर जस्ट लिविंग इन ग्रैटिट्यूड। जैसे ही आपको कोई ब्रेकडाउन आया, लेकिन आपको यूनिवर्स पे इतना ट्रस्ट था और आपने उस वक्त भी थैंक यू किया, आपको रोना आ रहा है, उस वक्त आप मैजिक फुटस्टेप्स कर रहे हो। ठीक है, आपकी कोई चीज खो गई है और आप उसको विजुअलाइज कर रहे हो, थैंक यू यूनिवर्स मेरी वो चीज दोबारा से मुझे देने के लिए वापस। ठीक है, फिर आपके कुछ मोमेंट है फ्यूचर में जिसमें आपको परेशानी है, थोड़ी सी लग रहा है, लेकिन आप बोल रहे हो थैंक यू फॉर द बेस्ट आउटकम, थैंक यू दैट मेरी जमीन बहुत अच्छे दाम में बिकी है और इतने लोगों को फायदा हुआ है, थैंक यू यूनिवर्स। अभी तो बिकी भी नहीं है, अभी तो बाहर आया भी नहीं है, लेकिन पहले से थैंक यू करना शुरू कर दिया। These are the practices we do, isn't it? It's so amazing. So of course, Shyamji and Priyanka should share अपने मुंह से, but again Priyanka is a school teacher, उनको सुबह भागना होता है and all that, but हम Saturday Sunday को शेयरिंग्स ले लेंगे, और शेयरिंग्स को हमको अपना थोड़ा लिमिट करना पड़ेगा, like very crisp, that this was the issue, these are the practices I did and this was the outcome, short में। ठीक है, जो बहुत पावरफुल हो जाएगी और टाइम भी सेव हो जाएगा और ज्यादा लोग कर पाएंगे। So but you know what I mean to say is the crux of it is that it is so beautiful that the rewiring is happening and it is happening at such a fast pace.
है ना। इसका मतलब इस बुक को हमने पानी में डिसॉल्व करके पी लिया है, होमोजेनियस मिक्सचर बना के सारी टीचिंग्स को, विच इज सो ब्यूटीफुल. So yes, it says that make sure, okay, the catchphrase of today, make sure you live every day of your life to the fullest. I will live, every day of my life to the fullest. This is an affirmation. Thank you, universe, that I live every day of my life to the fullest. So I'm not waiting for tomorrow for the happiness to come, because my living life today is to the fullest. Okay, so today, thank you, universe, that I, Deepti, live every day of my life to the fullest. So whatever your name is, like you add your name to Deepti, okay, that today I live every day of my life to the fullest, and write this 21 times. And then you see what happens. Okay, this is how beautiful life is, and this is how beautiful the subconscious mind is. Okay, so we go to Mastin Kip. सब अब अपने experiences इस sentence पे बेस करके बताएंगे अपने अपने. हाँ जी. Marston Kip, family and friends, while they love you and while they want what's best for you, unless you have a kick-ass mom or dad or a kick-ass environment that you grew up in, generally they are going to want you to take the financially safe path where there is certainty and safety. ये वो बोल रहे हैं कि आपको बहुत एडवाइस मिलेंगी, like unless you have a kick-ass mom or dad का मतलब होता है मेरे जैसी मॉम जो अपने बच्चे को बोले कि कम ऑन यार, तुमको वहां जाना है, गो हेड एंड डू इट, सो जो जिसका बच्चा जब बीमार पड़ता है बैंगलोर में तो बोलती है गो चेक योरसेल्फ इनटू द हॉस्पिटल. आई कैन इजीली टेक अ फ्लाइट एंड गो ना, बट मैं क्या उसको स्ट्रांग बनाऊंगी कि वीक बनाऊंगी. ठीक है, तो मैंने उसको कहा जाओ हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट लो. मैंने भी नहीं ली उसकी, खुद गया सेंट जॉन्स हॉस्पिटल बैंगलोर में. अपने आप को सुबह से लेकर रात तक उसको बैठा भी नहीं जा रहा था. आई सेड खाना खा लो, नहीं मुझे वॉमिट हो रही है ये. सो आई हैव टॉट देम टू टेक बिग रिस्क्स इन लाइफ, just go in the no man's land. Okay, doesn't matter, you go, you want to do this, you do this. Okay, That's called. Generally पेरेंट्स प्रोटेक्टिव होते हैं ना बच्चों के लिए, तो वो बच्चों की कहीं ना कहीं ग्रोथ हैम्पर होती है. प्लस वी कांट थिंक फॉर देम. इट इज नॉट राइट टू थिंक फॉर देम. सपोज दे वांट टू डू समथिंग, दे वांट टू बिकम अ प्रोफेशनल गिटारिस्ट और अ लीड बैंड सिंगर. हमने हमेशा से ये सोचा है कि हमारे बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर या वकील बनना है. ठीक है, क्योंकि हमें लगता है कि बस वही 3 प्रोफेशन है. बट प्रोफेशंस कितने डाइवर्सिफाई होते हैं, हो गए हैं, है ना. प्रोफेशन बहुत डाइवर्सिफाई होते हैं आजकल. different kind of professions are coming into the market and they are all very important. So it is like let them be. तो इसमें जनरली जो मास्टन किप कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर जनरली मतलब अगर आपके तो बहुत ही चिल्ड आउट मॉम एंड डैड हैं जो आपको रिस्क लेने देते हैं तब तो ठीक है. ठीक है, लेकिन अगर थोड़ी भी कंट्रोलिंग पेरेंट्स हैं तो वो आपको कभी वो सब नहीं करने देंगे जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए चाहिए, क्योंकि वो भी अपनी तरफ से सही है. माँ बाप को भी लगता है कि ये सिक्योर है, ये सेफ है, देखो यहाँ पे जाओगे तो ऐसा होगा, इस तरह से करोगे तो आप सेफ रहोगे, इस तरह से ये वाला स्टेप लोगे तो ये सेफ्टी प्रिकॉशन के तौर पे ये अच्छा होगा, ये आपके फ्यूचर के लिए अच्छा होगा, है ना. पेरेंट्स भी अपनी तरफ से सही है. वो क्यों चाहेंगे कि बच्चे को उनके मतलब रिस्क लेने का मौका मिले या जो भी है. सो फिर वो मास्टन के बोल रहे हैं बस इतना, that they will want you to take the path which is more financially safe, और जहां लगे कि देखो इनकम आएगी, है ना. जैसे अगर आप बिजनेस करो और एक सैलरी करो, वो सैलरी किसी को मिल रही है गुड 2-3 लाख रुपीज, तो माँ बाप बच्चे को ये बोलेंगे कि देखो तुम्हारे घर में 2 लाख रुपए आ रहे हैं और तुम तो हमारे साथ रह ही रहे हो, घर है तुम्हारे पास, सारे कंफर्ट्स हैं, सारी लग्जरीज हैं, 2 लाख रुपए तुम्हें सैलरी से हर महीने आ रहे, तो तुम यही कर लो, क्यों तुम्हें बिजनेस करना है. इस चीज का मत बिजनेस करो, बिजनेस में रिस्क होती है, कभी ऊपर जाता है. देखो आप अपने दादाजी को देखो, आप पापा को देखो, देखो रिस्क रहती है, कभी पैसे आते हैं कभी नहीं, है ना. तो माँ बाप भी अपने एक्सपीरियंस से उनको बताते हैं.
सो यही वो मास्टन के बोल रहे हैं कि वो हमेशा आपकी सेफ्टी चाहेंगे या फाइनेंशियली सेफ पाथ लेने को बोलेंगे. दैट इज व्हाट ही सेड. हाँ जी, रीना. Sorry, Unmute. ma'am, I was yeah, Michael Acton Smith. As painful as it might be in the short term to step away from the security and a job that is paying well, you have got decades of life to live. You might as well suffer a bit of a short term pain to find something you love, even at a lower salary. Because if you do a job you love, you will end up being successful in so many other ways. Yeah, so that's what he says here, that कभी कभी किसी की सैलरी लो होती है, उनको करना पड़ता है जॉब, ठीक है, लेकिन आपको पता नहीं है व्हाट फ्यूचर होल्ड्स फॉर यू. एंड वो जो आपने करंट जॉब करी है ना, वो आपका सक्सेस के लिए स्टेपिंग स्टोन बन जाता है. सो अभी हो सकता है बहुत पेनफुल सी सिचुएशन हो, पैसा भी अपने हिसाब से नहीं आ रहा है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है, बट जस्ट वेट, यू नो, लाइक एंड्योर दिस. कहते हैं ना, जो चेरी ब्लॉसम्स होते हैं, चेरी ब्लॉसम का पेड़ कितना सुंदर लगता है. आई मीन पीपल स्पेशली गो टू जापान एंड लंदन चेरी ब्लॉसम्स देखने के लिए, ठीक है, बहुत सुंदर दिखते हैं. लेकिन उसके जो, जब वो बड फॉर्म में होता है ना, तो उनको हार्श विंटर को एंड्योर करना पड़ता है. मतलब जो बिल्कुल बर्फ जो पड़ती है, वैसी वाली सर्दियों को एंड्योर करना पड़ता है. और जितनी स्ट्रॉन्ग सर्दी पड़ती है ना, वो उतना ही चेरी ब्लॉसम बहुत अच्छे से फ्रूट करता है, वो बहुत खिल के आता है. अगर विंटर्स कभी कम पड़ती हैं या टेम्परेचर लो नहीं होता है, तो चेरी ब्लॉसम का फूल बहुत अच्छे से ब्लॉसम नहीं हो पाता है. ठीक है, सबको विंटर पीरियड के थ्रू होके हल्का सा गुजरना पड़ता है. सबकी लाइफ में विंटर्स आई है ना, हम सबकी लाइफ में आई होंगी. रियली डजंट मैटर, वो हमारे चेरिश मोमेंट्स हो जाते हैं, क्योंकि फिर वो नापना बहुत आसान होता है कि मैं उस माइलस्टोन पे खड़ी थी और आज मैं इस माइलस्टोन पे हूं, और मुझे अपना फ्यूचर वाला माइलस्टोन भी नजर आ रहा है जो मैं क्रिएट कर रही हूँ आज यहाँ पे खड़े होके. ठीक है, दैट इज व्हाट इट इज. कोई बात नहीं अगर शॉर्ट टर्म पेन आता है, या कोई ऑब्स्टिकल आता है, या कोई प्रॉब्लम आती है, यू नो, और वट एवर. अगर अब, लेकिन अगर आपको अपने पर्पस वाला काम नजर आ रहा है और आपको लग रहा है कि मुझे काम वो बहुत पसंद है, लेकिन उसमें सैलरी कम है, डज नॉट मैटर, डू इट. अगर पसंद है ना आपको वो काम, अगर आपकी उसमें फायर है, आपका उसमें इंटरेस्ट है, आपका उसमें प्यार है, तो चुपचाप उसको कर लो. फिर सैलरी मत देखो, बिकॉज वो आपको जिंदगी में बहुत आगे लेके जाएगा. ठीक है, say that because if you do a job you love, you will end up being successful in so many other ways. ठीक है, बिकॉज आप हाई वाइब्रेशन में रहोगे, आप इंजॉय करोगे अपना काम. अपॉर्चुनिटीज तभी आती है जब आपका फायर होता है किसी चीज में. ठीक है, अब काम कोई बात नहीं, कम सैलरी है तो, लेकिन वो स्टेपिंग स्टोन है, और वो आपको जिंदगी में कहाँ लेके जाएगा वो हम सोच भी नहीं सकते, बिकॉज लाइफ हैज सो मच टू ऑफर टू अस. हाँ जी. G.M. Rao. Don't let don't let less money let you compromise on what you love to do. What you excel in will definitely bring you that very prosperity and security you need. Maybe the start would be small, but as one achieves perfection in what you are doing, everything else will follow. Being trapped by security can happen to anyone. There are many people making a lot of money whose work is a grind to them, and they are as unfulfilled and unhappy as those making a lot less money. Yeah, thank you so much, Reena. We'll be able to read only so much today. Thank you so much. Okay, ma'am. Thank you. This is about the GM Rao, our own GMR, जो हमारे एयरपोर्ट्स बनाते हैं, बहुत सारे फ्लाईओवर्स और वो सब भी बनाते हैं, बट GMR जनरली आर इंडियन एयरपोर्ट, सारे ही GMR ने बनाए हुए हैं. उनका ये कहना है कि अगर पैसे कम मिल रहे हैं ना, लेकिन आपको काम अच्छा लग रहा है, तो आप उसको दिल से करो, बिकॉज वो आपको लैंड अप करेगा सक्सेस में, और अपने काम में आपको परफेक्शन होने का मौका भी मिलेगा. दैट्स व्हाट ही सेज.
लेस मनी के कारण आप कॉम्प्रोमाइज मत करो व्हाट यू लव टू डू, ओके, बिकॉज वो ही उसी वजह से प्रोस्पेरिटी एंड सिक्योरिटी आपके फ्यूचर में आती जाएगी। ठीक है, उन्होंने जो ये लिखा है कि स्टार्ट कुड बी अ स्मॉल वन, ठीक है, कुछ टाइम तक नहीं पैसा आ रहा, सपोज आपने कोई नया बिजनेस शुरू किया है जो आपको बहुत पसंद है करना, लेकिन शुरू में नहीं अगर पैसा आ रहा है, डज नॉट मैटर, ओके, बट एज वन अचीव्स परफेक्शन, जैसे जैसे आप परफेक्ट होते जाओगे, एवरीथिंग एल्स विल फॉलो, फेम, फॉर्च्यून, मनी, abundance, travels, amazing, luxurious life and all of that, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसा बहुत कमाते हैं, लेकिन आपको पता है उनको रात को नींद भी नहीं आती है। मतलब ऐसी जिंदगी का क्या फायदा कि पैसा है लेकिन अपनी पूरी हेल्थ चली गई है उसी चक्कर में, ठीक है, हेल्थ एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं बट पैसा एंजॉय करने का टाइम नहीं है। मतलब पैसा बहुत अच्छे से आ रहा है बट पैसे को जब तक आप एंजॉय नहीं करोगे, होल्ड करके रखोगे, तो उसका फायदा क्या है? मनी लव्स बीइंग स्पेंट, and especially if you're enjoying something or if you've loved to buy something that you really wanted, money loves that, ओके, इतने प्यार से और इतनी खुशी से उसके लिए पैसे खर्च करो कि वो बहुत मल्टीप्लाई होके बहुत जल्दी आपकी जिंदगी में वापस आ जाएगा। दिस इज अ लॉ, आई एम नॉट सेइंग इट बिकॉज आई एम सेइंग इट, इट्स अ लॉ। जब कभी भी पैसा आप बहुत खुशी से उस चीज के लिए स्पेंड करते हो जो आपको बहुत अच्छी लगती थी और बहुत ब्लेस करके आप पैसे को देते हो कि ठीक है ये पैसा आप दे रहे हो जिस भी पर्सन को, जिस स्टोर को, जिस भी ऑनलाइन साइट को, या जो भी है, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को, इतना ब्लेस करके दो कि थैंक यू, मेरी फेवरेट चीज थी, इतनी अच्छी ड्रेस है, जो भी चीज है आपका, कि ये मेरे पास, यू नो, लाइक आई एम सो ग्लैड दैट आई हैव इट, आई एम सो ग्लैड दैट आई हैव द मनी टू गिव टू दिस, ब्लेस दैट मनी, कि जिसके पास भी जा रहा है, यू नो, उनकी बाय डे एंड नाइट प्रोस्पेरिटी हो। अब वो देखना, वो आपका पैसा है ना, वो आपके पास वापस आएगा, और आएगा तो मल्टीप्लाई होके वापस आता है, ओके। सो हमको वैसी जिंदगी थोड़ी चाहिए कि आप, मतलब ठीक है पैसा आ रहा है लेकिन ना तो पैसा करने के लिए टाइम है, ना पैसा आप इंजॉय कर पा रहे हो, और मेंटालिटी ऐसी है कि होल्ड ऑन टू करके रख लो। वी डोंट वांट दैट काइंड ऑफ अ लाइफ, है ना, बीइंग ट्रैप्ड बाय कि ठीक है मैं सिक्योर हूं, मेरा बैंक बैलेंस इतना सारा है, ठीक है, दैट ऑल दैट, बट ग्राइंडिंग हो रही है उस पर्सन की जो पैसा उस तरह से कमा रहा है जिसको, सो मनी, यू डोंट हैव टू वर्क हार्ड फॉर मनी। यही तो हमने सबसे फर्स्ट वाले चैप्टर में ही पढ़ा था, यू हैव टू वर्क स्मार्ट, है ना, जो 4 आवर वीक वर्क वाली जो बुक थी, उसमें यही है ना, आप 4 घंटे काम करके भी बिलियनर बन सकते हो। So work doesn't require you to work that hard. Everybody who's saying that I'm working hard, उसमें क्या word था, that you are a slave. So एक word था उसमें, I don't know, अगर किसी और ने पढ़ी है तो बताना, you're some kind of a slave. You know, we don't want to be slaves to it. We want to have freedom. We want to be opposite to being a slave to anything. We don't want to slave to money. We don't want to be slave to time. We don't want to be slave. Slave is not a good word, right? We want to be free. We have to have freedom in life. Freedom to choose what we want, freedom to sleep at what time we want to, freedom to enjoy the things that we want to, freedom to do the work our way, freedom to do anything, okay? That is how we want to be. So we don't want to be trapped in anything. And then that's what GMR says, that बहुत सारा ऐसा पैसा कमाते हैं लेकिन उनकी जिंदगी इतनी grinding होती है, and they are as unfulfilled and unhappy as those making a lot less money. तो जो कम कमा रहे हैं वो उनसे भी ज्यादा अनफुलफिल्ड और अनहैप्पी होते हैं, ठीक है। तो ऐसे पैसे का कोई फायदा है नहीं, है ना। तो हम मजे करना चाहते हैं, पैसे खूब कमाएंगे लेकिन उसमें एंजॉय भी तो करेंगे ना, तो वो पैसे एंजॉय करने चाहिए। और जब खर्च करोगे 101% आपके पास वो पैसा वापस आएगा। तो इनसिक्योरिटी में मत खर्च करना कि इतना खर्चा हो गया, ज्यादा हो गया, डज नॉट मैटर, आएगा वापस, उसको ब्लेस करो। वरी में दोगे कि बहुत ज्यादा है, बहुत महंगी है, बहुत ये है, बहुत ये है, फिर नहीं आएगा वापस, ठीक है। वरी की फीलिंग बिलो द लाइन होती है, ब्लेसिंग की फीलिंग, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग, इतना प्यार डाल दो उस पैसे में आप कि मजा आ जाएगा, ठीक है। मैंने जब अपने शूज लिए थे तो मुझे रनिंग शूज अलग, सो वी ऑल नो दैट रनिंग शूज, वॉकिंग शूज अलग अलग होते हैं। तो मेरे पास हर तरह के जूते होते हैं, क्योंकि मैं रन करती हूँ तो मैं रनिंग शूज ही पहनती हूँ, मैं वॉकिंग शूज पहन के रन नहीं करती। फिर मैंने नाइकी रनर्स लिए, ठीक है, उसके बाद वो लिए, बट देन आई लव बाइंग शूज इन एनी केस, एंड आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम वॉकिंग, स्टैंडिंग, रनिंग, यू नो। मैं बहुत कम बैठती हूँ, बस यहाँ पे अभी भी बैठ के फिर आई स्टैंड, ऑफिस में भी पूरे टाइम खड़े होती हूँ,
तो हम लोग अभी एक बात कर रहे थे कि हमारे ऑफिस में ना स्टैंडिंग वर्किंग टेबल जो होती है तो वो होनी चाहिए, क्योंकि मुझे बैठ के मुझे खड़े होकर काम करने में मजा आता है। खाना खा के तो मैं बहुत देर तक खड़ी रहती हूँ, लाइक काम भी, लैपटॉप का काम भी मैं खड़े होकर करती हूँ। So for me, shoes become very important. Then I thought that, okay, I'll buy. Then I thought that, okay, let me go for the best brand of shoes. Then I saw that EA7, which is Emporio Armani. I wanted the runners from there, and I thought I'm going to buy only Armani shoes. And then, you know, I kind of went to the Armani site and EA7 dekhe, or obviously, like, you know, quite a bomb in terms of money. And then I thought that, no, like for my comfort, I really want to do it, you know. And then I got them, और मैंने इतना ज्यादा ब्लेस करके वो पैसे दिए। ये मेरे लिए ना बहुत अंदर का रेवोल्यूशन था, क्योंकि मैंने कभी इतने महंगे जूते कभी खरीदे नहीं थे, मतलब बहुत ही ज्यादा महंगे होते हैं वो। So I had Nike is a very good brand, right? I mean, we know Nike runners are also not very economic. So, but then I really wanted Armani. And then I went and then I paid a whopping amount for that. तो एक बार मुझे लग रहा था कि मतलब ऐसा नहीं है कि चाहिए थे तो आप कॉम्प्रोमाइज तो कर ही सकते हो ना, मतलब ऑब्वियसली आप दूसरे नाइकी भी लेके आ सकते थे, तो ऐसा कुछ वो नहीं है। But then I just did it, okay, and I paid, और मैंने इतनी ब्लेसिंग के साथ वो पैसे दिए कि you will not believe, 3 दिन में मेरे पास उसका 4 गुना पैसा आ गया। कहाँ से, मैंने सोचा भी नहीं था, completely unexpected. Okay, so this is one experience I can share with you, and that gives me so much comfort when I wear. Each time when I'm traveling, I don't forget to carry my EA7, and you know, so that's how it works. ये तो कभी कभी अभी ऐसा होता है हमको, हम अपने ना बहुत शौक मारते हैं ये सोच के कि बहुत महंगा पड़ जाएगा या ऐसा कुछ, बट आपका पैसा है, कहीं नहीं जाएगा, आप ही के पास आएगा, क्योंकि मनी तो एनर्जी होती है। अपनी एनर्जी आप उस वाइब में रखो, आपके पास वापस आएगी 100%। और ये हर एक चीज के साथ मेरे साथ होता है, you know, whether I'm buying outfits, whether I'm buying jewelry, whether I'm buying whatever, everything comes back multiplied and multiplied. Okay, so that's what, ये सब जिंदगी में एनर्जी का खेल है, बस अपनी एनर्जी ग्रैटिट्यूड और लव में रखो, ठीक है, चाहे कुछ भी सिचुएशन है इस वक्त, does not matter. Okay, we have to rise above that and we have to keep ourselves in that frequency. So yes, that's all we are going to read today. And Ritu, आपका hand raised है, बताइए कौन सी कविता सुनानी है आपको हमको? Good morning, ma'am. Good morning, Morning. everyone. जल्दी जल्दी, हाँ, तीन हैंड रेज है, अभी 3 ही लेंगे हम, विच इज ऋतु, सौम्या एंड भारती, लेकिन क्विक शेयरिंग सो दैट वी कैन बी फ्री बाय 7:15 7:10, ठीक है? yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. मैम सबसे पहले तो ये वो वाला ब्लू जो मैं आपको बता रही थी कि आपके वाले ब्लू से मैं बहुत अट्रैक्ट हुई थी, और जब मैं अपने लिए शॉपिंग करने गई तो मुझे ये अट्रैक्ट हुआ बहुत ज्यादा, बट मुझे रात को घर आके याद आया कि ये वही वाला ब्लू था जो मुझे दीप्ति मैम को बहुत पसंद आया था। और जो आपके घर के सामने वाला मैम ये वाला ब्लू, ब्लू वाला जो आपने मुझे फोन किया था जिस दिन, ये ये जो आपका मुझे हाँ ब्लू बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया था, और मैंने अपने लिए जब शॉपिंग की तो उस समय मेरे माइंड में ये नहीं याद आया कि यही वाला ब्लू है जो दीप्ति मैम को मुझे बहुत पसंद आया था। रात को जब मैं घर आई तो मुझे रात को सोते सोते जब मैं मैजिक रॉक वाली प्रैक्टिस कर रही थी ना अपनी, थैंक यू कर रही थी कि आज क्या क्या अच्छा हुआ मेरे साथ, तो फिर मुझे याद आया ये वही वाला ब्लू है जो मुझे दीप्ति मैम का पसंद आया था। हाँ, वो स्टोल था जो आपको पसंद आया, जो मैंने उस दिन पहना हुआ था। अच्छा, ये वाला ब्लू था, थैंक यू। हाँ जी, हाँ मैम वो स्टॉल वाला लगता है, ये भी ब्लू पसंद था आपका मुझे। अच्छा, हाँ ये कुर्ती है शॉर्ट सी, या यस मैम। और दूसरा मैम, आई गेस आज दीपक सर का बर्थडे है। हाँ दीपक वर्मा, हाँ हाँ जी, दीपक वर्मा का बर्थडे है। तो थैंक यू उनको विश करने के लिए। मैम आज तो देखना चाहेंगे सब लोग सर को एक बारी। है नहीं, पता नहीं, दीपक तुम कनेक्टेड हो? अभी तक तो कनेक्टेड थे, मेरे सामने वाली चेयर पे बैठ के मेरा लेक्चर सुन रहे थे। दीपक अगर तुम कनेक्टेड हो तो थैंक यू अपने मुंह से बोल दो, चलो नहीं तो नहीं, हमको देखना है सर को आज, सर को अच्छा, वो तो वर्कआउट करने जाते हैं सुबह। ओके ओके। लेकिन वो अभी तक 2 मिनट पहले तक बैठे हुए थे, अपनी शूलेस टाई कर रहे थे रूम में, दूसरे रूम में। सर के लिए एक बट हाँ, छोटी सी विशेष है मैं हम सब मैं की तरफ उनका से। वो कन्वे आपका कर दूंगी और उनका मैसेज भी आप तक ग्रुप में पहुंचा दूंगी।
Happy birthday to sir, ma'am. या मैम शाहरुख खान का बर्थडे है Yes, आज और Happy yes, birthday, दीपक वर्मा दीपक का जी। बर्थडे है और भी बहुत लोगों का बर्थडे है। yes मैम अनु के हस्बैंड का भी बर्थडे है आज। हाँ, अनु के हस्बैंड का भी बर्थडे है। भाविन है यहाँ पे? अनु आप हो कनेक्टेड? वो मुझे स्क्रीन पे क्योंकि लैपटॉप से कनेक्टेड होती हूँ तो नहीं दिखता है। अनु अभी अनु तो नहीं थी, कनेक्टेड पहले है। देखा था मैंने, आपका मुझे पता नहीं। और मैम सर के लिए हम सब ग्रुप की तरफ से तो एक भी कुछ छोटी सी मैंने पोएट्री लिखी है। हम्म, अम, मैं अपने उनको नाम के यूट्यूब रिकॉर्डिंग अनुरूप पे सुना दूंगी। अपने नाम के अनुरूप ही आप रोशनी फैलाते जाएं। अपने प्रोफेशन के माध्यम से आप खुशबू सभी ओर फैलाते जाएं। सुगंधी आपके द्वारा बनाए हुए खाने की फैले हर एक दिशा में। लोग लाइन लगाकर खड़े हों आपके रेस्टोरेंट के बाहर प्रतीक्षा में। मसालों की गुणवत्ता और आपकी प्रतिष्ठा बेमिसाल हो। आप जो भी खाना खाएं, आप जो भी खाना बनाएं उसकी महक बेमिसाल हो। आपकी बनाई हुई हर एक डिश यूनिक हो। आपके द्वारा यूज की हुई डिफरेंट हर कुकिंग टेक्निक हो। जिंदगी के हर एक मकाम में आपने दिया है हमारी लाडली मैम का साथ। आप हमेशा स्पाइनल कोड बनकर खड़े हैं उनके साथ। आपके साथ से ही वो हम सभी को सुबह सवेरे सेशन देती हैं। आपके साथ से ही वो हम सभी को इतना ज्ञान देती हैं। कई सारी डिफरेंट डिशेस का आप करें फ्यूजन। बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो हर एक डिश की प्रेजेंटेशन। द डिलीशियस डिशेस बाय दीपक वर्मा नाम का टीवी पर आपका एक चैनल हो, जिस चैनल की हमेशा रेटिंग टॉप पर हो। लोकप्रियता बढ़ती जाए, प्रशंसक बढ़ते जाएं। आप खूब अच्छा खाएं और सभी को मजेदार खिलाएं। आप यूं ही पाते रहें प्रसिद्धि, बढ़ती रहे आपके नाम की समृद्धि। सुख संपदा संपत्ति से भरे रहे भंडार। यूनिवर्स का साथ आप करते यूनिवर्स का सदा आप करते रहें आभार। आपके आभार से हम भी आभार सीखते जाएं। आप यूनिवर्स का प्यार प्यार और प्यार पाते जाएं। आपकी मेहनत का कुछ इस तरह मिले आपको रिवॉर्ड। जल्दी ही आपके हाथों में हो मिशलिन स्टार अवार्ड। हैप्पी बर्थडे सर, थैंक यू सो Oh, मच। not bad. दीपक Happy वर्मा birthday, हैज टू रीड दीपक इट। जी। उनको पता नहीं खाना बनाए हुए 10 साल हो गए हैं ऋतु, तो अब उनको बोलना पड़ेगा। अब मेरे ख्याल से मुझे लगता है तुम जब आओगी हमारे घर पे उस दिन, वो जब जब दीपक वर्मा किचन में घुसते हैं ना, देन ही क्रिएट्स हेवन। तो वो एडमिन वाइज चला सकते हैं बड़े से बड़े होटल्स, मतलब ही इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद 5 स्टार्स 7 स्टार्स, ही कैन रन दोज। बट खाना अब वो आप ही के लिए बनाएंगे क्योंकि वो हमारे लिए तो बनाते नहीं है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच हमारे सर। तो खाना बनाएंगे, 10 साल से तो बनाए नहीं है, अभी बनाएंगे वो। अब हम आपकी कविता सुनाएंगे तो उनको थैंक यू बोलेंगे। मैम, थैंक यू सो मच मैम। दिस इज रियली ऑनरेबल वो मी। उनका प्रोफेशन है किचन्स डिजाइन करना, कमर्शियल किचन्स। सो जो ओके 5 स्टार्स के किचन होते हैं वो बहुत अच्छे से डिजाइन, इतनी बढ़िया बढ़िया वो किचन बनाते हैं कि हमें देख के मजा आ जाता है। ठीक है, तो वो खाना बनाते हैं मतलब ऐसे, बट मेरे मतलब का नहीं होता क्योंकि वो अजीब अजीब से जानवर होते हैं जब वो बनाते हैं, और मैं सेमाई वेजिटेरियन हूँ। सो बट यस, आपकी इतनी अच्छी दुआएं हम उनको कन्वे करेंगे। इतनी सुंदर पोयम आपने, मतलब मुझसे भी ज्यादा सुंदर पोयम उनके लिए लिखी है। सो दिस इज सो ब्यूटिफुल। थैंक यू ओके, मैम, थैंक यू अभी सो अभी मच ओनली मैम। आई थिंक आप इसको मुझे अपनी आवाज में पोस्ट भी कर देना, है ना? मैम मैं बिल्कुल उनको बिल्कुल, सुना दूंगी। आप मुझे सर की थोड़ी सी पिक्स भेज देना तो मैं फिर वीडियो बना दूंगी। तो मेरे इंस्टाग्राम पे नहीं हो क्या? हूँ मैम, हूँ। ढूंढिए आप उनको। ठीक है। वैसे मैं थैंक अपने यू। इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा अपनी फैमिली को पोस्ट नहीं करती हूँ, बट दीपक के साथ हैं 2 3 4। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। ठीक है, thank you so much Ritu, thank you so much for such a lovely creation. You are absolutely amazing, brilliant, stunning, you know, like phenomenal. Words fall short when I have to praise you. Thank you मैम so much. ये आपकी Yeah. वो जो है ना एनपीएल टेक्निक से रीवायरिंग चल रही है मेरी। मेरा Thank you. फेवरेट टॉपिक है जो आपने आज चूज किया था, एनपीएल वाला, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। NLP. एनएलपी, यस यस मैम, Thank you थैंक यू so सो much. मच। Soumya, yes, waiting to hear from you. Good morning, ma'am. Good morning, Good everyone. morning.
मैम शेयरिंग नहीं है, क्वेश्चन है आपके लिए. So this is the general struggle that happens, I think, मेरे साथ तो होती है, but I don't know with everybody or not, कि yes it is, आप we have goal set, हमारा dream list है, बाकी भी चीजें हैं जो दिमाग में है, and we are constantly visualizing, being grateful and all that. So how do we differentiate between kind of dreaming and expecting? You know, ऑटोमेटिकली जब ड्रीम करते हैं ना, वो एक्सपेक्टेशन जुड़ जाते हैं उसके साथ, बट आई नो जब एक्सपेक्टेशन जुड़ जाते हैं तो वो ड्रैग होने लगता है, लाइक यू नो माइट नॉट हैपन, इट माइट नॉट वर्क, एंड जैसे नहीं होता है तो यू लाइक गो डाउन. सो हाउ डू वी keep them apart? Like how do we not kind of go down with the expectations? Okay, so you don't have to think, even if you're thinking, you have to be in the now. Firstly, I would recommend you read the book, The Power of Now. It is available on the YouTube as an audiobook. Okay, you will understand it much better, how law operates. The second thing is that in your now, if you are happy and you are visualizing, suppose जो भी आपका dream है, आप उसको आप सोच रहे हो, your next moment will be multiplied to your current moment. Okay, it is as simple as that. So in the now, if you say, I am grateful, I'm happy, I'm living a good life, I have roof over my head, मुझे रोज खाना मिलता है, I have my studies, I have my career, I have my vision to actually read the books and to admire the things around. In the now, I have got my family, I have got my mother, I have got my father, I have got a good circle of friends, I have these books to take me forward. In the now, I'm happy. You have already created your next moment. It takes 17 seconds of being in the now, in a good zone, to be able to create the next moment. And when you keep doing that, you know, your next moment will automatically be the best you can imagine. And it will only get better and better, and you will become habitual of living in the now. So another thing that I would like to say, the third thing is meditate for a minimum of 15 minutes. Put a timer and just sit. It is not a rocket science. Just sit with your eyes closed and focus on inhalation and exhalation. If you're a Hindu, you can just chant Om slowly. Okay, and om, इस तरह से करना होता है. A starting from your abdomen, O starting from your chest, and coming from your head. Okay, from your brain, from your mind. Keep doing this if that is, in case you're not able to focus on your inhalation and exhalation meditation. Meditation will teach you to live in the now, and it will recreate the moment for you next and next and next. And now things will not make you jittery. Okay, because stress किसी भी तरह का expectation के साथ अगर stress है, इसका मतलब है the mind is still a monkey mind, which it is. Okay, but to get into that state of mind where you are in the now and you become a calmer person, okay, need you to focus just on your breath for a while. And that 10 minutes or 15 minutes of just focusing on inhalation and exhalation is going to be a thrust of the rocket into the universe towards realizing your dreams. So just do these three things. Don't think so much about, and keep visualizing and thinking and talking and feeling the happiness of it. You don't have to feel the stress of not having achieved them. Feel the happiness of it, that this is how life would be like. You know, this is how, you know, it would be. You know, if I have this, you know, imagine yourself having an amazing career. So it would be so beautiful, you know, to have that career. What all things are you going to do? So, you know, like, why is something you need to focus on more? That why do you want it? Why do you want a lot of money? Why do you want a successful career? So that is what you need to focus on. Okay, maybe the stress too much is on how and when right now. So I keep telling you that how and when has to dissipate. Okay, so just do this. Try to stay in the first, read the book, The Power of Now, okay, by Eckhart Tolle. So once you love it, and if you want, you can always order it online or something.
Second thing is, to be in the now, minimum 17 seconds. It says that you can take it to 68 seconds and then 2 minutes. You will feel that difference happening. मतलब आपके quantum level पे difference होना शुरू हो जाता है, where that worry or that, lack or whatever will go away. And third is meditate for 15 minutes. Do this for a quick transformation in case अगर आपको वैसी वाली feeling आ रही है तो. Okay, because I have also overcome these feelings that you're talking about, Soumya, from that's where I was maybe a year or year and a half ago. And now the future, is definitely very contained, and I'm so much in the now, and, things don't make me jittery or worried anymore. And even if they do, I think about, okay, what are the beautiful things I need to do? Okay, I have to go to Turkey on a beautiful trip. That's been on my dream list. Okay, and what else? That I have to contribute so much to my organization because, I've got a lot from VLCC. Has to give back 10 times, or maybe 100 times back. And what else? That I have to enjoy, with family and friends a lot more. And what else? So, like thinking about that will kind of make you that's called making peace with where you are right now. So, all these things that I've told you, all the 3 steps will help you to make peace with where you are right now. And you start from today because there's no tomorrow. Aaj hi humne padha hai na, that today is the day when I'm living my fullest life. So today is the day. Okay, because tomorrow never comes. Yeah. Yes, ma'am. Thank you so much. Thank you. Thank you. Yes, Bharti, you can quickly share and then we wrap No, up. no, I just have 2 doubts. It may look silly, but I just had in my mind. Nothing is Have to ask. silly. Yeah. So sometimes it happens like in the afternoons, we are in that alpha state. We just want to take a nap and drowsy. And can we do that magic rock at that time as well? Absolutely. You can do that. Thomas Alva Edison made huge creations using an afternoon nap. ओके बट उनको नींद आ जाती थी ना बिकॉज अल्फा से फिर आप थीटा में चले जाओगे ना बिकॉज अगर नींद आ जाएगा तो आप थीटा में चले जाओगे सो सबकॉन्शियस माइंड इज ओपन ओनली इन द अल्फा स्टेट सो ही वुड कीप अ स्पून इन हिज हैंड एंड अ मेटालिक प्लेट काउच के नीचे बेड के नीचे और अपना हाथ वो एयर में लटका के रखते थे स्पून पकड़ के सो द मोमेंट ही वुड गो टू स्लीप दैट स्पून वुड फॉल और वो आवाज आती थी टंग का साउंड वुड कम फ्रॉम हिज मेटालिक प्लेट सो देन ही वुड वेक अप बिकॉज ही स्पेशली डिड दिस फॉर डे ड्रीमिंग he would specially take that nap for daydreaming and to prolong that alpha state of mind. That's how he made the world's biggest creations, discoveries, and inventions. So yes, answer is yes. Thank you so much. And second one is, I asked Meena ma'am also last night, like yesterday when you were saying that there's something in front of your eyes, which maybe you must be missing, you just need to check it around. And then again, I went it to a class where I generally don't go, and I randomly pick a lesson and I start teaching it, and there was the same lines that there's something in front of your eyes which you may be missing. And Meena ma'am told me to ask to universe while sleeping. I did the same. I did last night. It was like first time I feel like, okay, I've done my magic rock practice also very nice way. And I asked that, but I didn't get the answer. And it happens many a times that I get that magic cues again and again for something comes again and again in front of my eyes. But I don't realize what it is saying to me. And I do meditation as well. But I don't sometimes get answers like what it is about to say me, what I have to focus on what is universe is going to show me. So that So doubt sometimes decode arises. that line. That line is your answer. That line is your answer. Okay, so you decode the meaning that's there in your line and connect it to which aspect of your life you need to apply that line. So since I don't know, I mean, like, can't be very specific about the answer, but whatever the line is, like sometimes you have it. So अगर हो सकता है आपके आंखों के सामने कुछ opportunity है, कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसी teaching है जिसके बारे में you are thinking and rethinking about it. Maybe something that I spoke, that was your catchphrase. Maybe something that someone said is your catchphrase. Or maybe there was some impromptu, like kind of this thing that write a book or do this, like can't say that. So yeah, could be that. Could be maybe, I don't know. I mean, like
कह नहीं सकते. मैंने कल ये अनाउंस किया था that Bharti would be taking the all English session in the evenings. Yes, I heard Maybe that. you can take an added initiative and prayers towards it, and there are people who would need it because there are people who are non-Indians who don't understand Hindi. Maybe, you know, like it will come to fruition for them, or whichever way. There are lots of people who don't understand. I mean, when I go down south, even for my organization, you know, like, so like in when I go to Bangalore or Chennai, I don't speak Hindi at all because people don't understand it so much. Okay, and people who are out of the country, people who are not even Indians, they don't have their roots in India. They are the people who don't understand Hindi. So maybe for them, or I really don't know what it is, but you will have to figure out. And if you're not able to figure out, it means that your mind is getting slightly cluttered. You need to clean your slate. So clean your slate a bit by gratitude and love. That means there's too much going on and there are too many things on your plate. So you need to declutter, because universe communicates with you only when we are mindful and when we are in the now. You know, that's how you will be. It is telling you, but you're not receiving that message. So to get into that receiving mode, you have to be slightly more calmer, more mindful, and that thing will just write, you know, like, and universe से हम request कर देते हैं आपको जल्दी से reason बताएं that why is that thing coming in front of your eyes again and again, and it will come into very soon. You're going to share with us the experience. Thank you, ma'am. And one more small sharing. Yeah. As I told you on call, I want Rudraksh to be attend. तो वो regular नहीं कर रहा, but from that day I started writing for him, और on and off वो session attend कर लेता है. जैसे अभी last 2 days पहले उसने morning के 2 sessions half an hour attend किए थे. कल रात उसने मीना मैम का पूरा session attend किया था. So I just need your more उसको आप blessing. मीना मैम मत बोलो, वो छोटी सी बच्ची है. Yeah, but she's just like she's my very close friend, you know, like someone with whom मैं अपनी life की smallest detail share कर सकती हूँ. मतलब whenever I'm with Meena, I'm in a very safe zone, you know, like she's like she's me. So Yes. Meena is like that, but So she's very she's much respectful. She's younger. giving तो her हजरत time वाला even on मैम उसको भी embarrassing लगेगा. उसको आप मीना बोलिए, वो आपकी बिटिया जैसी है. even on Karwa Chauth, like she gave session. So it was really, I was really grateful for her. Yeah, so he's attending and I need more blessings from all of you. I really want कि मेरे से ज़्यादा regular वो हो जाए practices. Thank you. Bless you one with thing the I want best. to share. One thing हाँ I जी. want to share कि evening session में children are experimenting so many things. So they are sharing कि magic rock पकड़ के they are giving their exams. When they like if anything is lost, so they are holding the magic rock. They are saying thank you, thank you, thank you, and they are able to find the things. So they are experimenting so many things with the magic rock and then observation therapy and all that thing, ma'am. So it's amazing. Means they are very creative and very innovative, ma'am. Yeah. So we also learn so many things from them, no? Practice तो बच्चों से सीखनी चाहिए. Every small thing they carry the magic rock to the school during their exams. मतलब मुझे लगता है magic rock जितना innovation बच्चे लोग कर रहे हैं ना, it's like we are learning so much from them. Yes, Priyanka, thank you so much for sharing that. Magic rock and magic dust. वो इतना यूज करते हैं, मतलब फॉर एवरीथिंग. कोई डॉग रो रहा है, कोई डॉग लड़ रहा है, कोई बच्चे लड़ रहे हैं, कोई दुखी देख रहे हैं, मतलब every day they every day. It's very heartwarming. Yeah, that's really amazing. I'll attend that evening में, but that time I'm actually driving mostly, so I'd love to attend the बच्चों का session for sure. So we'll try and do that today. And Dipti, yesterday Priyanka was looking gorgeous. Very, very beautiful. कहाँ देखा आपने प्रियंका को? प्रियंका प्लीज अपनी इसी फोटो में पोस्ट सेशन कीजिए. में इवनिंग सेशन बच्चों के में. अच्छा प्रियंका, मुझे भी फोटो पोस्ट करो. बहुत Private बहुत chat ऐसे के भी लिए. she is very pretty, but with all her makeup and sari, and I don't know what she was wearing, but she was looking gorgeous. लहंगा सरिता जी, it was a लहंगा. या लहंगा. अरे मैं वो बोली मिसेस इंडिया है, उसको तो गॉर्जियस लगना बनता है, और इतने सारे ग्रेटिट्यूड के साथ तो पता नहीं उसके यहाँ वर्ल्ड की ब्यूटी उसके अंदर आ गई होगी. वो वैसे भी बहुत सुंदर है सरिता जी. I know. Gorgeous looking. I mean, if you see हमारी कोई पुरानी पिक्चर उसने अभी पोस्ट की थी, आई थिंक मुझे की थी
है ना प्रियंका? मैंने और Yes, आपने आज से 4 साल पहले, 5 साल yes, ma'am, VLCC लाजपत हाँ नगर. तब पोस्ट की थी। वो वैसे भी बहुत गॉर्जियस है वो। Genuinely, we have 2 Mrs. India on our group. One is Ina Agarwal, who's Meena's sister, and one is Priyanka. They Wow. both Yeah. have actually been Mrs. India. Wow. मैम Yeah. जिनकी और मेंटोरी लकी इतनी श्याम ब्यूटीफुल भैया। होगी तो हमारा बनता है. हाँ लकी श्याम भैया। हाँ Thank you, हाँ, ma'am. lucky श्याम भैया। I'm blessed to have her in my life, really. Yes. Oh Absolutely. wow, what a line. No, we are also blessed to have Priyanka in our life, Shyamji. So we Yes. share that blessing. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you. Bye-bye, and have a great Thank day. you. Thank you, Dipti. Thank you, Thank you. ma'am. Thank you so Thank you, much. ma'am. Thank you, Thank ma'am. you so Thank much, ma'am. you. Thank you. Bye. Bye.